Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start your chapter 5 of part B, financial statement and analysis of financial statement. The chapter which I am starting from this lecture is accounting ratio. Accounting ratio, meaning of accounting ratio and current ratio I am explaining in this lecture. What is accounting ratio, or you can say what is ratio analysis. Accounting ratio is also called ratio analysis. Beta, ratio analysis is the quantitative interpretation of the company's financial performance. It provides valuable information about the organization's profitability, solvency, operational efficiency, and liquidity positions as presented by the financial statement. रेशियो एनालिसिस क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का. ये हमें एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल ऑफ द कंपनी, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़. Ratios may be classified into 4 categories. Number 1, liquidity ratio. Number 2, solvency ratio. Number 3, activity or turnover ratio. Number 4, profitability ratio. Liquidity ratio. Liquidity refers to the ability of the firm to meet its current liabilities. Liquidity क्या होती है बेटा? Liquidity means first ratio I am explaining you, that is liquidity ratio. Liquidity ability होती है firm की to meet its current liabilities. The liquidity ratio therefore are also called short-term solvency ratio. These ratios are used to assess the short-term financial position of the concern. हम liquidity ratio क्यों calculate करते हैं? So that we can find out the short-term financial position of the concern. They indicate the financial ability to meet its current obligation. ये current obligation को meet करने के लिए financial assistance provide करती है. In the words of J.F. Kling, liquidity is the ability of the firm to meet its current obligation as they fall due. लिक्विडिटी इज द केस विद विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश. लिक्विडिटी वो केस है जिसमें हम एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं कैश में. शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स of the firm are primary interest in the liquidity ratio. If the firm wants to take a short term loan from the bank, the bankers also study the liquidity ratio of the firm. Liquidity ratio के थ्रू ही आपकी फर्म जो है किसी तरीके से लोन अवेलेबल कराती है. तो बैंकर्स को अगर लिक्विडिटी पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है अपनी फर्म की, तो वो जो है लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू ही चेक करते हैं. जो भी मार्जिन होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का, वो भी आपका एसेस किसके थ्रू होता है? लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू होता है. लिक्विडिटी रेशियो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, एंड नंबर 2 क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो नंबर 2 आता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो. सेकेंड रेशियो आपका सॉल्वेंसी रेशियो है. दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. लिक्विडिटी रेशियो को हम इसलिए असेस करते हैं सो दैट वी कैन मीट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. इन सॉल्वेंसी रेशियो वी यूज the ability of the firm to meet the long term liabilities. These ratio reveals as to how much amount in the business have been invested by proprietors and how much amount has been raised from the outside sources. इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि प्रोप्राइटर्स ने अपना पैसा कितना लगाया है, दैट इज़ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स फंड, और उसने आउटसाइडर से कितना बोरो करा है. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो को निकालते हैं. सॉल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इंडेप्टनेस एट मैच्योरिटी. ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए होता है ताकि वो डिस्क्लोज कर सके इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपकी फर्म पे और कितना मीट कर सकता है इंटरेस्ट का फर्म. उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो, देयर आर सम इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो. नंबर 1 डेप्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नाउ सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज वो सी पॉइंट, दैट इज एक्टिविटी रेशियो. These ratios are calculated on the basis of cost of revenue from operation और revenue from operation. Activity ratio को हम revenue from operation यानी नेट सेल या वो cost of goods sold के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. These ratio is also called as known as turnover ratio. Activity ratio को turnover ratio भी बोला जाता है बेटा. Turnover क्या होता है? Turnover indicate the speed or number of times the capital employed has been rotated in the process of doing the business. किसी भी बिज़नेस को करने में जितने टाइम्स में हमने कैपिटल रोटेट करा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्वेंसी एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. दीज रेशियोज इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हायर टर्नओवर रेशियो indicate the better use of capital or resources and in turn lead to higher profitability. Some important turnover ratios are number 1 inventory turnover ratio or stock turnover ratio, number 2 debtors or receivable turnover ratio, number 3 creditors or payables turnover ratio, and number 4 working capital turnover ratio. ये 4 ratios आपके turnover ratios हैं.
Now come to the fourth, that is profitability ratio or income ratio. The main object of all the business concerned is to earn profit. Profit is the measurement of the efficiency of the business. Profitability ratio measures the various aspects of the profitability of the firm. Profitability ratio के थ्रू बेटा हम profitability कैलकुलेट करते हैं फर्म की वेरियस एक्सपेक्ट्स यूज़ करते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसलिए यूज़ होता है ताकि वो प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम देख सकें, वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसको फाइंड आउट कर सकें, उसका कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें इंक्रीज और डिक्रीज का. इसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. सम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये 5 आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं. नाउ सी नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी रेशियो में अभी मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट कर रही हूँ. उसमें मैं आपको सबसे फर्स्ट रेशियो दैट इज़ करेंट रेशियो एक्सप्लेन करती हूँ. करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो. करेंट रेशियो का सेकंड नेम वर्किंग कैपिटल भी है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है. दिस रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़ ऑफ आवर बिजनेस. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियो इज करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस अपॉन करेंट लायबिलिटीज़. Current assets are the assets which are likely to be converted into cash और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम. वो एसेट जो 12 मंथ्स ऑफ टाइम में कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड करेंट एसेट्स. करेंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं बेटा. करेंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड है? नंबर 1 करेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, नंबर 3 ट्रेड रिसेबल्स, बिल्स रिसेबल्स एंड सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजंस, नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नंबर 5 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड नंबर 6 अदर करेंट एसेट्स. Now see, items excluded from current assets are loose tools, stores and spares, provision for doubtful debts. Now see next, current liabilities. Current liabilities are the liabilities payable within month from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. Current liabilities includes short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions. अदर करंट लाइबिलिटीज़ में करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स आ जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, अनक्लेम डिविडेंड आ जाता है और कॉल्स इन एडवांस आ जाता है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है. दिस रेशियो इज़ यूज टू असेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ऑन टाइम. ये रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ इन टाइम. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंट रेशियो इज़ 2:1. सपोज कितना होता है करेंट रेशियो? दैट इज़ 2:1. ये आइडियल माना जाता है. इट मीन्स दैट करेंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ इट्स करेंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ के करंट एसेट्स ट्वाइस होनी चाहिए. हायर द रेशियो द बेटर इट इज़ बिकॉज द फर्म विल बी एबल टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज़ मोर ईजली. जितना रेशियो इंक्रीज होगा बेटा उतना अच्छा है फर्म के लिए, सो दैट फर्म इज़ एबल टू मीट द current liabilities more easily. The reason of assuming 2:1 as an ideal ratio is that the current assets include such assets as inventory, trade receivable, etc. from which full amount cannot be released. भाई इन्वेंट्री में भी हमारा आपका लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाता है जो अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है. ट्रेड सेल्स में भी बैड डेप्ट्स आ जाते हैं आपके, तो वो सारे के सारे अमाउंट रिलीज़ नहीं हो पाती है. इसलिए हम इसको और करेंट लाइबिलिटीज़ आपको फुल मीट करनी होती है, इसलिए हम इसको डबल लेते हैं सो दैट वी कैन इंडिकेट द शॉर्टेज ऑफ नो. अगर आपसे इससे कम होता है रेशियो 2:1 से आइडियल से, इट मीन्स ये शो कर देता है कि लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल शो करता है. इज इट क्लियर बेटा? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक. ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है. करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है इसमें. फ्रॉम द फॉलोइंग particulars are given to you. Calculate current ratio and quick ratio. Goodwill, inventories, trade receivable, less provisions, investments, expenses paid in advance, cash and cash equivalent, accrued income, short term provisions, short term borrowings, trade payables and expenses payable. गुडविल आपका क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट्स हो गई. इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसेवेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस एक्रूड इनकम. ये हमारी करंट एसेट्स होगी सारी. और करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स एंड एक्सपेंसेस पेएबल. तो इनको दोनों को हम टोटल कर लेंगे. मैंने आपको अभी लिक्विड रेशियो नहीं बताया, इसलिए लिक्विड रेशियो मैं इसको कैलकुलेट करना इसमें नहीं बता रही हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर. Current assets is equals to current investment plus inventories plus trade receivables plus short term loans and advances plus prepaid expenses plus advance paid of tax plus cash and cash equivalent.
तो करंट एसेट्स आ गए 8,96,000. करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़ इट इज़ 2,80,000. करंट रेशियो कैलकुलेट कर लिया आपने. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इट इज़ 3.2:1. इट मीन्स ये 2 से ज़्यादा आइडियल से ज़्यादा है. इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी. ठीक है. तो इसी तरीके से आप इसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लीजिए. देन डिवाइड करंट एसेट्स टू divide current assets to current liabilities and you will get the ratio of current ratio. I hope you all understand better. Do all the things in your copy. फिर copy एक separate बनाइए जिसमें chapter wise work को start करिए. Thank you बेटा. Have a nice day.